जब भी ये बहन प्रेग्नेंट होते थे तो हर बार इनका मिसकैरेज हो जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा निराश रहते थे। इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ शुरू कर ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। पर जब किसी ने अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी निराशाओं को सदा के लिए खत्म करके उसको आनंद में तब्दील कर दिया। तो आइए इस मार्वलस टेस्टमनी को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि मेरा बेबी डैड सी, मेरे मिसकैरेज हो गया सी, पर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੇਫ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
मैं बहुत ज़्यादा रोना, अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ अन्य जगहों ਤੇ चल जाओ, ਤੁਸੀਂ मतलब देसी दवाइयां खा लो। मेरे हस्बैंड ने मैनू दसना आन के तो मेरे फ्रेंड ने इदा मैनू दसिया वा आपां उत्थों दवाई खा लैंदे आ, पर मैनू दवाइयां दे नाल बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा सी, जिस दे नाल मैनू बहुत ज़्यादा मैडिसन खाण दे नाल बहुत ज़्यादा शरीर दे विच प्रॉब्लम होण लग पई। जदों मैं मेरे हस्बैंड ने मार्केट जाना तो जदों आपां बेबी दे कपड़े देखदे हुंदे सी ते मैनू बहुत फील हुंदा सी। मैं अपने हस्बैंड नू कहना तो जदों साडा भी बेबी होऊगा तो आपां उहदे लई इदां दे सोहणे सोहणे कपड़े उहनूं पाया करांगे। इस वजह दे नाल मैं काफ़ी डिप्रैशन दे विच चल गई। मैं इकल्ली ही बैठी रहना, किसी दे नाल गल ना करना, मैनूं बहुत परेशानी हुंदी सी। जदों मैं इन्नी मैडिसिन खा चुकी सी तो मैनूं कोई रिजल्ट नहीं सी मिलिया तो मैं उम्मीद ही छड्ड दित्ती सी तो मैं कदी माँ बनूंगी। फिर एक दिन सानूं किसी ने अंकुरा मिनिस्ट्री दे बारे दस्सिया, उन्होंने सानूं गवाहियां दस्सियां कि लोगों को परमेश्वर बेबी दे नाल ब्लैस करदा वा। मैं अपने हस्बैंड नूं दस्सिया कि सानूं भी उस चर्च दे विच जाना चाहिदा वा। फिर उस तो बाद मैं ते मेरे हस्बैंड खांबरा चर्च दे विच आए। जदों मैं गवाहियां नूं सुनिया ते मैनूं भी विश्वास होया कि परमेश्वर जिन्हां लोकां नूं ब्लैस कर सकदा वा बेबी दे नाल ते सानूं भी जरूर ब्लैस करूगा। फिर 20 अगस्त 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ने कहा जिन्हां भैणां दे कोल बेबी नहीं आ उन्हां ते अज प्रेयर होनी आ। चर्च में, खामरा चर्च में और ब्रांचेस में वो लोग रुकेंगे जिनको बेबी ब्लेसिंग की जरूरत है। एक स्पेशल ऑयल मैंने भेजा है, उस ऑयल से आप पर ले हैंड होगा, आप उसको अपने पेट पर लगाएंगे, बेबीज ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करे। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी ब्लेस्ड। फिर उस प्रेयर तो 1 महीने बाद मैं अपना प्रैगनेंसी टेस्ट किया। मेरा प्रैगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव सी तो मैं अपने हस्बैंड नूं दस्सिया तो मैं तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होए। मैं उस अपने प्रैगनेंसी टेस्ट नूं अपने सारे परिवार नूं दिखाया तो मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश सी। फिर पूरे 9 मंथ परमेश्वर ने मैनू तो मेरे बेबी नूं संभाल के रखिया ते 1 मई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने मैनू हैल्दी बेबी गर्ल ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मेरी हार्ट डिजायर ਨੂੰ परमेश्वर ने पूरा ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ मेरी बेटी मेरे फर्स्ट टाइम मेरे हੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ आई मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हुई ਤੇ परमेश्वर ने मेरे सौग ਨੂੰ आनंद 'ਚ बदल ਦਿੱਤਾ। मैं परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ मैं उन्होंने यही कहना चाहती हाँ परमेश्वर ते विश्वास रखो। परमेश्वर साडे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ दे विच असंभव नूं संभव किया। परमेश्वर तुहानूं भी जरूर बेबी दे नाल ब्लैस करूगा। इस वड्डी आशीष दे लई मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हाँ ते परमेश्वर दे दास और दासी दा धन्नवाद करदी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी। जैसे कि परमेश्वर के वचन लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बलदेव राज है, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम सुलोचना देवी है। हम यमुनानगर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह की है। 1995 में हमारी शादी हुई और शादी के 1 साल बाद हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। हमारे घर से कपड़े गायब होने शुरू हो गए और खून के छींटे भी पड़ने लगे। इसके बाद मुझको दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो मेरे को बहुत डर लगता था। जब मैं सुबह
उठता था तो मेरा मन काम करने को नहीं करता था। मेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मैं जिससे भी मिलता था लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता था। जब मैं सुबह उठ के अपने काम पे जाता था तो मेरा शरीर बहुत ही थका रहता था और मैं सोचता था अभी मैं नशा कर लूं, और मैंने फिर नशा शुरू कर दिया शराब का करना। तो मुझको बड़ा अच्छा फील होता था। मेरे थोड़ी देर के लिए मेरे मन को शांति मिलती थी। शराब के साथ साथ मैंने फिर बीड़ी भी पीनी शुरू कर दी। मैं दिन में 2-3 मंडल बीड़ी के पी जाता था। मैं इन नशों से और दुष्ट आत्मा के अटैक से इतना तंग आ चुका था कि मेरा मन मरने को करता था। फिर धीरे धीरे नशा इतना बढ़ गया कि इन्होंने नशे के कारण घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। बेटे को मारना, मुझे मारना और घर का सामान तोड़ना। ये मैकेनिक का काम करते थे, हमारी मैकेनिक की दुकान थी, और इन्हें धीरे धीरे नशे की वजह से वो सारा सामान बेच दिया। हमने रिश्तेदारों से कर्जा लेके इसकी दुकान का सामान बनाया, ये फिर बेच देते। फिर हमने लोन लेके दुकान बनाई और धीरे धीरे हम पे बहुत कर्जा होता चला गया। ऐसा करते करते हम पे 2.5 से 3 लाख रुपए कर्जा हो गया। इनके नशे के कारण इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि दिमाग पर इतना असर पड़ गया था, ये घर से भागने लगे थे, पागलों वर्गी हरकतें करने लगे थे। फिर इस कारण से हमें इनको घर में रस्सियों से बांध के रखना पड़ता था। जब इनकी हालत ज्यादा खराब होती थी तो हम इनको घर के अंदर ही हम इनको रस्सियों से बांध के रखना पड़ता था। जब इन्होंने पागलों वाली हरकतें शुरू करी और इन पे शैतान के अटैक शुरू हुए तो हमें अन्य जगहों पे भी गए। हम बहुत जगह अन्य जगहों पे कि हमने 1 से 1.5 लाख रुपया हमने अन्य जगहों पे लगाया कि इसके इलाज के लिए, मगर कहीं से भी कोई असर नहीं हुआ, कहीं से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इन पे पागलपन के इतने अटैक हुए तो हमने इनको दिमाग वाले डॉक्टर के पास भी ले गए और हमें इन्हें बहुत दवाई खिलाई, बहुत मेडिसिन खिलाई, मगर उससे भी इसको कोई असर नहीं पड़ा। और हमें इतनी शर्मिंदगी फील होती थी कि हमें किसी के साथ भी हमारा बात करने का माँ बेटे का मन नहीं होता था। फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो अंकुर राणा मिनिस्ट्री की एक वीडियो मेरे सामने आई और मैंने उसको देखा। परमेश्वर के दास वचन कर रहे थे, मैंने गवाहियों को सुना, उससे मुझे बहुत शांति मिली। जब मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया फिर मैंने इनको बोला कि आप ऑनलाइन वीडियो देखो, ऑनलाइन प्रोग्राम देखो, यहाँ पे गवाहियों को सुनो। और जैसे जैसे देखना शुरू किया इनका विश्वास बढ़ता चला गया कि मैं यहाँ से छूट सकता हूँ, मेरा यहाँ छुटकारा हो सकता है। फिर हम लगातार खामड़ा चर्च के साथ जुड़ गए और हमने खामड़ा चर्च आना शुरू कर दिया। फिर 6 अक्टूबर 2022 को हम खामड़ा चर्च में मौजूद थे। प्रभु के दास नशों के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो इन्होंने अपने लिए रिसीव की। सारी दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूं, निकल आओ। कमाल! नशे की, व्यभिचार की, गंदगी की, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे निकालता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे जो इन्होंने अपने लिए रिसीव की और इन्हें एकदम से हल्का महसूस हुआ। उस प्रेयर के बाद मैं नशे से और शैतानी अटैक से आज़ाद हो चुका हूँ। अब मेरे को कोई भी शैतानी अटैक नहीं पड़ता, कोई मैं नशा नहीं करता, अपना काम अच्छे से करता हूँ। अपने परिवार में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार अब बहुत ब्लेस है। जो कुछ भी मैं कमाता हूँ अपने घर में लेके आता हूँ, अपने बच्चों को देता हूँ। मेरे बच्चे अब बिल्कुल खुश हैं। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। अब लोग मुझको देख के पूछते हैं आपको कहाँ से छुटकारा मिला है। मैं लोगों को बताता हूँ मेरे को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, जो जिंदा परमेश्वर है। उसने मेरी लाइफ को, मुझको नया जीवन दिया है उसने। अब मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है और प्रभु का सुसमाचार भी मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। जो लोग आज भी नशा करते हैं और दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, मैं उन भाइयों को ये बताना चाहता हूं, जैसे प्रभु यीशु ने मुझको 30 साल से मैं नशा करता था, उसको आज़ादी दी, मुझको आज़ादी दी, ऐसे ही आपको भी प्रभु यीशु मसीह आज़ादी देगा। आप यीशु मसीह के पास आओ और छुटकारे को पाओ। इस बड़े छुटकारे और नए जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के दास और दासी का मैं धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की।